Hello, I am Shruti Harit and we will be discussing chapter 2 of geography, that is natural resources, land, soil and water. In this chapter we will be discussing the land resources, soil resources and water resources. We all know that earth is the only planet that is having life on it. That means earth ही एक ऐसा planet है जो कि एक life supporting planet है, सिर्फ यहीं पर जीवन संभव है. Because of presence of life on it, it is considered as the unique planet. You have all studied in class 7 about the four spheres of the earth, that are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. You know lithosphere is sphere of rocks, hydrosphere is sphere of water, atmosphere is sphere of air and biosphere is sphere of life. We all know all the rock particles and soil particle lies in lithosphere. All water bodies lies in hydrosphere. All the air we breathe is in atmosphere. And we all know life supporting sphere is biosphere. You also know that earth is called a watery planet. Why it is so? Because earth's surface is divided into two parts, that is land and water. According to studies, it is said that land is approximately 30% and water is approximately 70%. Because of abundance of this water, the earth is known as the blue planet. First resource that we will be discussing in this chapter is land resources. अब आपको सभी को पता है कि land जो है हमारी सभी human activities इसी पर based है. All human activities are based on land. For example, like agriculture is based on land. We build buildings on this land, roads, railway tracks, industries and mining, grazing of animals is also done on land. That means land is the most important resource for human activities. Now you all know that uppermost surface of land is soil. uppermost surface of land मतलब land की जो सबसे ऊपरी सतह है वो किससे बनी होती है? सॉइल से बनी होती है. सॉइल के दो मैटर्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट आर ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर. अब ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑल द डेड एंड डिकम्पोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज ह्यूमस एंड दिस इज द ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ soil. And inorganic matter contains rock particles, minerals, and there are also spore spaces in soil that is occupied by air and sometimes it is occupied by water. That means soil contains of organic and inorganic matter. Of population also depends on land. How? देखिए, कभी भी माउंटेन्स में अगर आप जाएंगे तो बहुत ही दूर दूर घर आपको देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स देयर इज स्पार्स पॉपुलेशन इन माउंटेन्स और डेजर्ट्स बिकॉज दीज आर इनएक्सेसिबल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनएक्सेसिबल? इट मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच. मतलब कि जहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, ऐसी जगह है जहाँ पर कि पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, उस जगह पर स्पार्स पॉपुलेशन होगी. एंड देयर विल बी डेंस पॉपुलेशन इन प्लेन्स बिकॉज दे आर एक्सेसिबल, ईजीली एक्सेसिबल. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कल्टिवेशन फैसिलिटीज़ ऑल्सो अवेलेबल इन plain areas and it is easy to reach there. Then what is land use? Land use means using of land for various purposes. It is also known as land use pattern. And what are these purposes? Like we do cultivation on land, we do mining on land, grazing of animals is also there, building of roads, building of railway tracks also depends on land only. That means we use land for various purposes. हम सभी अपने जो भी ज़रूरतें हैं वो सब लैंड से ही पूरा करते हैं और जिस तरह से हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको हम लैंड यूज़ पैटर्न के नाम से जानते हैं. सम फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़ पैटर्न. हर जगह पर लैंड यूज़ पैटर्न जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. पहले हैं फिजिकल फैक्टर्स एंड देन इज ह्यूमन फैक्टर्स. अब फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं? यानी जोग्राफिकल फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं. रिलीफ, फर्स्ट physical factor is relief. That means what type of land it is.
whether it is a mountain area or a plain area or a desert area or inaccessible forest, these comes under relief, यानी जिस तरह की लैंड है उसी तरह से हम लैंड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज सॉइल. वेयर सॉइल इज़ फर्टाइल देयर विल बी डेंस पॉपुलेशन and land is used for various purposes easily. Then climate also affect the land use pattern. अगर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, तो वहाँ पर लैंड का यूज़ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर रहना क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो इस तरह की नहीं होंगी कि लैंड का प्रॉपर यूज़ हो सके. नेक्स्ट इज मिनरल रिसोर्सेज. इफ़ देयर आर मैनी मिनरल रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर रीजन, देन देयर विल बी more utilization of land. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब हम लोग भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबल हैं कि किस तरह से लैंड का यूज़ हो रहा है. फर्स्ट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब डेंस पॉपुलेशन है कि स्पार्स पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है वो कम है या ज़्यादा है, कितने लोग एक जगह पर रह रहे हैं. जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं तो वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमेशा कम होगी. अगर लोग कम होंगे तो इसका मतलब लैंड का यूज़ जो है वो कम होगा. नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स. देखिए कहीं पर भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ करते हैं. जो भी उनके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी होती है या जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स होती हैं सोसाइटी में, सामाजिक उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरा करने की वो कोशिश करते हैं. अगर टेक्नोलॉजी और सोशल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कहीं भी किसी भी जगह पर, वहाँ पर लैंड की यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकती है. दैट मीन्स फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स डिटरमाइन द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड. To scientific norms, that means according to scientific rules, 33% of land in every country should be under forest to maintain ecological balance. यानी अगर हमें ecological balance को संतुलन में रखना है तो हर देश में कम से कम 33% ऑफ लैंड जो है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जिससे कि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मिले और मेडिसिनल फैसिलिटीज़ भी मिल सके. लेकिन सिर्फ 31.6% is under forest all over the world. Approximately 31.6% of land is under forest in the world. That means we are not following the scientific norms of forest. Forests are unevenly distributed all over the earth's surface. For example, Japan has 67% of forest, whereas India has 21% of forest only. In India there is more of cultivated land. 52% of land in India is under cultivated land, because you all know that India is an agriculture based country and most of the population is related to agricultural based occupations. There are some problems also related to land. लैंड के सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लैंड का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है. देयर आर 3 मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंड. फर्स्ट इज़ सॉइल इरोजन. यू ऑल नो सॉइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल. और मिट्टी का जब भी कटाव होता है या बहाव होता है उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आज लैंड रिसोर्सेज को फेस करनी पड़ रही है. नेक्स्ट इज़ डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन मीन्स decrease in the quality of land. That means low fertility of land. Why? Due to use of chemicals. आपको पता है कि आजकल एग्रीकल्चर जब भी करते हैं तो फार्मर्स बहुत सारे तरह के केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स इसमें डालते हैं जिससे कि उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो सके और साथ ही इनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो सके. इसी वजह से जो लैंड रिसोर्सेज है उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, यानी डिग्रेड होती जा रही है हमारी लैंड रिसोर्सेज. And next is deforestation. Deforestation means cutting of trees on a large scale. और आपको पता है कि अगर हम ट्रीज़ इस तरह से कट करते रहेंगे तो सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, क्योंकि जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज़ बाइंड्स द सॉइल एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फ्लोइंग या फ्लडिंग, है ना. तो इसका मतलब है कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पर करना चाहिए और कटिंग ऑफ ट्रीज़ जो है वो बैन कर देना चाहिए.